وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم تو میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں اور یہ تم جان سمجھو تو ایک بہت بڑی قسم ہے۔ یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے جو کہ ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ اس کو پاکیزہ لوگ فرشتوں کے علاوہ اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کیا اس کلام سے تم بے پرواہی برتتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو؟ بچائے اس کے تم اس کتاب کو مانتے، تم اس کتاب پر عمل کرتے۔ تم نے اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ تم اسے اللہ کا کلام بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم اس جان کے تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے، تو اچھا اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو تم اس جان کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ اگر تم واقعی سچے ہو، روح نکلتے ہوئے جب حلق تک جا پہنچتی ہے، پاؤں اور دڑ سے جان نکل آتی ہے اور اس وقت تمام دنیا کے لوگ بھی مل کر چاہیں تو انسان کو زندگی نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم یہ اللہ کو خالق اور مالک نہیں سمجھتے تو اس وقت اس جان کو واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس وقت تمہیں ماننا پڑتا ہے کہ اس جان کو نکالنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ اب اس وقت اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تمہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس جان کو اس وقت اب تمہارے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ تم اس جان کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ تمہارا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے؟ ہاں پس اگر وہ مرنے والا مقربین سے ہے تو اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے، نعمتوں والی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو تیرے لیے سلامتی ہے اے دائیں ہاتھ والے، اور اگر وہ جھٹلانے والے
اور گمراہوں میں سے ہے تو اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، اسے جہنم میں داخل ہونا ہوگا، یہ حق یقینی ہے۔ تو آپ اپنے رب کے نام کی تصدیق کیجئے جو بڑا عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جو اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے، اسی کے لیے ہی زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، انت الاول لیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اللہ تو پہلا ہے، تیرے سے قبل کچھ نہ تھا، تو آخری ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، اور تو باطن ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں۔ اقضی عن الدین واغنی من الفقر، میرا قرض دور کر دے اور میرے فقر اور مجھے فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو دعا جو ہے یہ قرض ادا کرنے کے لیے بہت عمدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہی بہت عمدہ ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ بول دیتی ہوں، انت الاول لیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عن الدین واغنی عن الفقر۔ وہ وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان پر چڑھتا ہے۔ آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ بارش نازل ہوتی ہے، انسان کا رزق نازل ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، اور اس میں انسانوں کی روحیں چڑھتی ہیں، انسانوں کے نیک اعمال چڑھتے ہیں، فرشتے اوپر سے نازل بھی ہوتے رہتے ہیں اور چڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے حساب اور علم سے باہر نہیں ہے۔ اسے زمین پہ بسنے والی مخلوق کی تمام ضروریات کا علم ہے۔ اسے یہ بھی علم ہے کہ کتنے لوگ فوت ہو گئے اور ان کے جسموں کے ذرات کہاں کہاں ہیں۔ نہ صرف علم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ لوح محفوظ میں ریکارڈ بھی کر رکھا ہے۔ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ یہ سورت نزول کے اعتبار سے جنگ احزاب اور صلح حدیبیہ کے درمیان نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ ہے جب مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے جانی اور مالی قربانیوں کی ضرورت تھی۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان میں سے کچھ تو وہ تھے جنہیں میٹھا میٹھا اسلام تو قبول تھا، لیکن مالی اور جانی قربانیوں کے لیے ابھی ان کی طبیعت تیار نہ ہوتی تھی۔ اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو خطاب کیا گیا کہ ایمان لاؤ تو کامل یقین کے ساتھ ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں جو مال ہوتا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا۔ اصل مالک اور اصل وارث اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امانت کے طور پر ایک انسان کو وہ مال دے دیتا ہے۔ انسان کو اس مال میں اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ اس میں سے اپنی ضرورتیں پوری کر لے، اور امانت کے طور پر اپنا حق اس میں سے لے لے اور باقی حقداروں کو لوٹا دے۔
हकीकी वारिस और हकीकी मालिक माल का अल्लाह रब्बुल इज्जत। जिसको चाहता है अता कर देता है, जिसको चाहता है तंग कर देता है, जिसको चाहता है फराख कर देता है। इंसान उसमें एक अमीन के इख्तियारात रखता है। जो शख्स इन इख्तियारात के साथ अपने माल को इस्तेमाल करे वो तो दुरुस्त है, लेकिन अगर ये इख्तियार ना हो और इंसान अपने आप को कुल्ली मालिक समझ बैठे तो फिर खराबियां पैदा होती हैं। तो जो लोग तुम में से ईमान लाए और उन्होंने माल खर्च किया उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह के साथ क्यों ईमान नहीं लाते? अल्लाह के रसूल तुम्हें दावत देता है कि तुम अपने रब पर ईमान लाओ और वो तुमसे पक्का वादा भी ले चुका। अगर तुम वाकई मोमिन हो, वो वही जात है जिसने अपने बंदे पर वाज़े आयात नाजिल की ताकि अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह ताला तो तुम्हारे साथ बड़ा शफकत करने वाला और मेहरबान है। तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह के रास्ते में क्यों माल खर्च नहीं करते? अल्लाह के लिए तो जमीन और आसमान की विरासत है। अल्लाह जिसे चाहता है माल दे देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। अल्लाह को तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है। इंसान जो माल खर्च करता है अपनी जात के बल के फायदे के लिए, अल्लाह इससे बेनियाज है। जिन लोगों ने फतह से पहले माल खर्च किया और जिहाद किया वो बराबर नहीं हो सकते। यही लोग दर्जे में ज्यादा हैं उन लोगों से जिन्होंने बाद में माल खर्च किया और बाद में जिहाद किया। यहाँ फतह से मुराद फतह मक्का है, क्योंकि मक्का फतह होने के बाद मुसलमानों की हालत काफी बदल गई थी। उन्हें अरब में सियासी गलबा भी हासिल हो चुका था। फतह मक्का से कबल जान और माल को दीन के लिए खपा देना ईमान की दलील थी, जबकि बाद में तो चढ़ते सूरज की पूजा करना तो निस्बतन आसान होता है। तो वो लोग जिन्होंने फतह मक्का से कबल जिहाद किया और गलबा दीन के लिए माल खर्च किया, वो उन लोगों के बराबर नहीं है जिन्होंने इस्लाम के गलबे के बाद माल खर्च किया और बाद में जिहाद किया। ऐसे लोग दर्जे के एतबार से बड़े हैं और अल्लाह ताला ने हर एक से भलाई का वादा किया है। जिसने बाद में माल खर्च किया वो भी नेकी कर रहा है, लेकिन उसकी नेकी फतह मक्का से पहले माल खर्च करने वालों की नेकी के दर्जे में बराबर नहीं है। और अल्लाह ताला जो तुम अमल कर रहे हो खबरदार है। कौन है वो शख्स जो अल्लाह को कर्ज हसना दे कि वो उसके लिए दुगना चुगना बढ़ा दे और उसको उम्दा अजर अता फरमाए। ये रब की शान करीमी है कि माल के तमाम सोर्सेज खुद अल्लाह ने पैदा किए, चाहे वो जमीन के पेट से निकलने वाले खजाने हों जैसे सोना, चांदी, तेल, गैस वगैरह, या अजनास हों। इंसान को इनसे नफा हासिल करने की सलाहियत भी उसने बख्शी। जो माल अल्लाह ताला तलब फरमाता है वो माल भी खुद इंसान ही के फायदे के लिए है। अल्लाह को इसकी कतन कोई जरूरत नहीं। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उसको कर्जे हसना करार दिया और न सिर्फ अल्लाह ताला ने उसको नेकी करार दिया बल्कि अल्लाह ताला उसका दुगना चुगना बल्कि 700 गुना तक भी उसका बदल अता फरमाएगा। हर वो माल जो अल्लाह की रजा के हसूल के लिए दिया जाए कर्ज हसना कहलाता है। कर्ज हसना सिर्फ हलाल कमाई से दिया जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हराम कमाई कबूल नहीं करता। सदका देने के बाद एहसान न जतलाए, वरना सदका जाया हो जाएगा। सदका में बेहतरीन और उम्दा माल देना अफजल है। मोहताज को सदका देकर ये समझे कि ये उसका हक था, उस पर एहसान न समझे। उस दिन आप मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को देखेंगे, उनका नूर उनके दाएं और उनके आगे दौड़ रहा होगा। तुम्हें आज ऐसी जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। ये दाएं हाथ वाले लोग होंगे, वो मैदान हशर की तरफ जब जाएंगे तो नूर उनके आगे भी होगा और उनके दाएं भी रहनुमाई के लिए उनके आगे आगे जा रहा होगा। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिन
लोगों से कहेंगे हमारा इंतजार करो, हम तुम्हारे नूर से कुछ फायदा हासिल कर लें। उनसे कहा जाएगा पीछे चले जाओ, नूर तलाश करो। तो उनके दरमियान एक दीवार कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। दुनिया में भी मुनाफिक मुसलमानों के साथ मिले जुले रहते थे। क़यामत को भी उनसे कहेंगे ठहरो, हम तुम्हारे नूर से फायदा हासिल कर लें और उसकी रोशनी में चल सकें। उन्हें कह दिया जाएगा यहाँ दुनिया के मामलात नहीं चलेंगे, तुम ये नूर तुम हमसे नहीं हासिल कर सकते, नूर दुनिया में वापस जाओ, नेक अमाल करो। ये नूर उसे मिलता है जिसने दुनिया में नेक अमाल किए होंगे, आज तुम्हें ये नूर हमसे नहीं मिल सकता। यही बातें कर रहे होंगे कि उनके एक दरमियान एक दीवार हाइल कर दी जाएगी। उस दीवार में एक दरवाजा होगा, उसके अंदर रहमत होगी और उसके सामने अजाब होगा। वो मुनाफिक मोमिनों को पुकारेंगे क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ न थे? अब तो दीवार हाइल हो गई है, सामने मुनाफिकीन की साइड पे अजाब होगा और मोमिनों की साइड पे अल्लाह की रहमत होगी। मुनाफिक उनको दीवार के पास से पुकारेंगे क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ नहीं थे? मुसलमान कहेंगे क्यों नहीं, दुनिया में तुम हमारे साथ थे, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाला था, तुम इंतजार करते रहे थे, तुम शक में रहे थे और तुम्हें तुम्हारी आरज़ुओं ने धोखा दे दिया था, हत्ता कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और तुम्हें अल्लाह के बारे में शैतान ने, सबसे बड़े धोखेबाज ने तुम्हें धोखा दे दिया। मोमिन और मुनाफिक में एक ही फर्क होता है, मोमिन अल्लाह पे ईमान लाता है, उसे अल्लाह के वादों का यकीन होता है, हालात मुआफिक हो या ना मुआफिक हो, वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कुर्बानियां देता ही रहता है, फरमाबरदारी करता ही रहता है। जबकि मुनाफिक अपने मफादात के बंदे थे, फायदा देखते चल पड़ते और अगर फायदा न देखते वहीं खड़े होके रह जाते। तो मुसलमान उन्हें कहेंगे तो हमारे साथ थे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी आरज़ुओं ने धोखा दे दिया, तुम अपने मफादात का इंतजार करते रहे, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल पे यकीन नहीं था, तुम्हें उसके वादों पे शक था, तुम्हें शैतान ने दुनिया में भी धोखा दे दिया और अब भी तुम शैतान जो है वही तुम्हारा साथी है। आज के दिन तुमसे कोई फिदिया कबूल ना किया जाएगा और ना उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, तुम्हारा ठिकाना आग है, वही तुम्हारी साथी है और वो बुरा ठिकाना है। तो असल बात ईमान और निफाक में फर्क किस चीज का है? यकीन का। ईमान नाम ही यकीन का है, ईमान इस चीज का नाम है अल्लाह ने जो वादे किए हैं उन वादों पे यकीन किया जाए, जो उसके रसूल ने वादे किए हैं आखिरत के, जन्नत के, उन सारों पे इंसान को पक्का यकीन हो। मुनाफिक को इसमें शक होता है, मुनाफिक सिर्फ ये देखता रहता है कि मुझे दुनिया में कहाँ पे फायदा मिल रहा है, जहाँ फायदा मिल रहा होता है वहां उसके पांव आगे बढ़ जाते हैं और जहां उसे कुर्बानी देनी पड़ती है या उसके मफादात को नुकसान पहुंच रहा होता है वो वहीं खड़ा हो जाता है। जरा सोच लीजिए हमारा ईमान भी ऐसा तो नहीं? सोचें, जहां कोई काम आसान लगा हमने कर लिया और जहां हमें डर हो लोग बातें बनाएंगे, मुआशरे वाले लोग हमें बुरा भला कहेंगे, हमें मलामत का सामना करना पड़ेगा, हम भी अपने उठते हुए कदम पीछे हटा लेते। ये निफाक की निशानी है, ये ईमान की निशानी नहीं है। क्या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाएं और जो हक से नाजिल हुआ, क्या वो वक्त अभी नहीं आया कि अल्लाह ताला की आयत सुने और हमारे दिल उसके लिए डर जाएं? अल्लाह वो वक्त आ गया, हम तेरी आयत सुनेंगे, तेरी आयत को कबूल करेंगे, तेरी आयत पे अमल करेंगे और तेरी आयत के मुताबिक अपनी जिंदगी का रुख मोड़ेंगे। क्या अभी वो वक्त ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए डर जाएं और जो हक नाजिल हुआ है और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जो जिनको इससे कबल किताब दी गई थी, उन पर एक लंबी मुद्दत गुजरी तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर फासिक हैं। अल्लाह की याद से गाफिल होने का नतीजा ये होता है जो यहूद और नसारा का हुआ था। यहूद और नसारा के दिल सख्त हो गए, वो तो अल्लाह के नबी के गुजरने के एक अर्सा बाद उनके दिल सख्त हुए। इधर कुरान नाजिल हो रहा है, अल्लाह का रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है, फिर तुम्हारी ये हालत क्यों हो रही है?
जान लो अल्लाह ताला जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है। हमने तुम्हारे लिए आयात को खोल खोल कर बयान कर दिया है ताकि तुम अकल करो। बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज हसना दिया, अल्लाह ताला उनके लिए दुगना कर देगा, उनके लिए उनका अजर बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए उम्दा अजर होगा। और वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए, ऐसे ही लोग सच्चे हैं और शुहदा अपने रब के पास हैं, उनके लिए उनका अजर होगा, उनका नूर होगा। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, हमारी आयात को जुठलाया, वही दोज़ख वाले हैं। आपको पता है हम सूरह फातिहा में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें ऐसे लोगों के रास्ते की हिदायत दे दे जिन पर तूने इनाम किया है। और ये इनाम याफ्ता लोग नबी हैं, सिद्दीक हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। सिद्दीक ऐसे शख्स को कहते हैं जो अपने जाहिर और बातिन से इस्लाम की तस्दीक करते। शुहदा ऐसे लोगों को कहते हैं जो जान देकर ये गवाही दे दें कि जिस कलमे को उन्होंने जबान से पढ़ा है वो अपनी जान देकर उसकी सदाकत की गवाही दे रहे हैं। तो जो लोग सिद्दीक हैं और जो शुहदा हैं वो अपने रब के पास होंगे, उनका अजर भी होगा, उनके लिए नूर भी होगा। लेकिन काफिर लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दोज़ख तैयार कर रखी है। जान लो बेशक दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है, खेल और तमाशा है और जीनत है और आपस में एक दूसरे से फख्र करना है, एक दूसरे से माल में कसरत का मुकाबला करना है और औलाद में भी कसरत का मुकाबला करना है। वाकई दुनिया जो है ये खेल और तमाशा है। किसी ने ये खेल खेल लिया कि मेरी औलाद बड़ी लायक है, मेरी औलाद जी फला अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। किसी ने ये खेल खेल लिया कि जी मेरा तो घर बड़ा शानदार है, मैं उसे सजा बड़ा अच्छा लेती हूँ। किसी ने ये खेल खेल लिया कि मुझे पकाना बड़ा अच्छा आता है। तो हमारी जिंदगी सारी की सारी खेल और तमाशों में गुजर जाती है। लेकिन जो शख्स अल्लाह पे ईमान लाने वाले होते हैं, उनका जिंदगी का हर काम, जिंदगी का मकसद, उनका जिंदगी का महवर, उनकी जिंदगी का मरकज अल्लाह की जात होती है। वो औलाद पालते हैं अल्लाह की रजा के लिए, वो माल कमाते हैं अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए, वो घर बनाते हैं अल्लाह का हुक्म बजा लाते हुए। उनकी जिंदगी का मकसद दुनिया की जीनत, एक दूसरे पे फख्र करना, माल और दौलत में एक दूसरे से मुकाबला करना नहीं होता। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया की जरूरतें अल्लाह ने बड़ी थोड़ी रखी हैं। छोटा सा पेट है, थोड़ा खा के जो भर जाता है। इंसान ने एक वक्त में एक ही लिबास पहनना होता है, इंसान ने रहना होता है, एक ही कमरे में उसने रहना होता है, खा उसके पास 100 कमरों का महल क्यों ना हो। बाकी जो जिंदगी की सारी खराबियां हैं वो इस तकासुर से पैदा होती हैं, इस तफाकुर से पैदा होती हैं। इंसान एक दूसरे से इस रीस में लगा होता है, मेरा घर उसके घर से ज्यादा शानदार, उसने 1 कनाल का घर बनाया, मैं 2 कनाल का बनाऊंगी। उसका बच्चा शोएफात में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा इंग्लैंड पढ़ेगा। उसका बच्चा इतना कमा रहा है, मेरा बच्चा इतना कमा रहा है। उसने इतना जहेज दिया था, मैंने उससे 4 गुना ज्यादा देना है। उसने शादी शानदार की थी, मेरी शादी उससे दुगनी शानदार होगी। तो ये दुनिया खेल और तमाशा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक दूसरे से फख्र में मुकाबला करना, एक दूसरे से जीनत में मुकाबला करना, ये एक मोमिन की जिंदगी ये नहीं होती। एक अल्लाह को न मानने वाले की ये जिंदगी तो हो सकती है। एक मोमिन की जिंदगी की हर हरकत, हर अमल अल्लाह की रजा की खातिर होता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बारिश हुई तो उसकी नबातात ने काश्तकारों को खुश कर दिया, फिर वो जौबन पर आती है, फिर तो उसे जर्द पड़ी हुई देखता है। इंसान की जिंदगी की मिसाल एक खेती की तरह है। बारिश होती है, खेती लहलहा उठती है, लहलहाता हुआ खेत हर एक को खूबसूरत लगता है। इसी तरह इंसान की जिंदगी में जवानी आती है, भरपूर वलवले, भरपूर ताकत और भरपूर जौबन पर इंसान होता है। लेकिन उसके बाद जैसे खेती पहले लहलहाती है, उसके बाद जर्द हो जाती है और फिर हवाएं उसे उड़ाए फिरती हैं, इसी तरह जवानी के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद मौत और फिर इंसान खत्म हो के रह जाता है।
और ये तो दुनिया का मामला है। आखिरत में सख्त अजाब है, और या तो अल्लाह की बख्शिश है या और उसकी रजामंदी है। ये चॉइस आपकी है कि आप आखिरत में अपने लिए अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह की मग़फ़िरत को तलब करते हैं, या अजाब शदीद की तरफ आपके पांव बढ़ रहे होते हैं। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत हासिल करने के लिए सबकत ले जाओ। साबिकू का माना होता है रेस लगा दो, मुकाबले करो। हमारे मुकाबले कहाँ होते हैं दुनिया में? उसके पर्दे शानदार है, मेरे उससे ज्यादा अच्छे होने चाहिए। उसकी ज्वेलरी ऐसी है, मेरी उससे ज्यादा शानदार होनी चाहिए। अल्लाह ने हमें सबकत का मैदान दिया था, आखिरत का, अपनी मग़फ़िरत का, जन्नत का। सबकत ले जाओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, जन्नत की तरफ, जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान जितनी है। वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूल पर। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहता है दे देता है, और अल्लाह ताला तो बड़े फजल वाला है। हाँ जी, फिर आपने किस चीज में मुकाबले करने हैं? जरा अपना ज़हन वाज़े तो कर लें। यहाँ बैठ के अल्लाह से वादा तो कर लें, किसमें मुकाबले करने हैं? दुनिया में कि अल्लाह की रहमत और जन्नत के लिए? कम अज कम मुंह से तो वादा करो अल्लाह से। और अल्लाह ताला तो बड़े फजल वाला है। तुम्हें कोई भी मुसीबत जमीन में आती है और ना ही तुम्हारे जिस्मों के अंदर, मगर वो हमारे पैदा करने से पहले ही लौहे महफूज में लिखी होती है। बेशक ये बात अल्लाह पर आसान है, ताकि तुम गम न खाओ उस पर जो तुमसे खो जाए, और तुम उस पर ना इतराओ जो अल्लाह तुम्हें अता फरमा दे। और अल्लाह ताला तो किसी भी फख्र करने वाले और शेही खोरे को पसंद नहीं करता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूकात की तकदीर जमीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिख दी थी। सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसे कहा लिख, और उसने तमाम की तकदीर जो थी लिख दी थी। तकदीर पर ईमान लाना अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। मुसलमान जब किसी आजमाइश में परेशान होता है तो ये सोचकर सब्र कर लेता है कि ये बात मेरे मुकद्दर में थी, इससे बचना मुमकिन न था। इसी तरह उसे अगर कोई नेमत मुयस्सर आती है तो वो उस पर इतराता नहीं है, बल्कि वो उसको अपने रब का फजल समझकर और मुकद्दर का लिखा हुआ समझकर उसका शुक्र अदा करता है। इसी तरह मुसीबत में सब्र कर लेता है कि ये मेरे मुकद्दर में थी। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मदद तलब करो, हिम्मत न हार कर बैठ जाओ। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो ये न कहो कि मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, लेकिन ऐसे कहो अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर किया और जो चाहा अल्लाह ने कर दिया। अगर शैतान के जो लौ का कलमा है ये शैतान के काम का रास्ता खोल देता है। मुसलमान लौ का कलमा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि लौ का कलमा अगर मैं यूं करता तो यूं हो जाता, मैं बच्चे का अच्छा इलाज करता तो मेरा बच्चा ना बचता, मैं यूं कर लेता तो बेटी को तलाक ना होती। ये कुफर का कलमा है। मुसलमान के लिए एक ही उम्मीद का सहारा होता है कि ये मेरे रब का फैसला था, ये मेरे मुकद्दर में था, बस। इसीलिए तकदीर का जो नजरिया है, अकीदा है, ये मुसलमान की के लिए अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला तो किसी शेही करने वाले और फखर करने वाले को पसंद नहीं करता। वो लोग जो बुखल करते हैं, लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, और जो मुंह मोड़ ले तो अल्लाह ताला तो बेनियाज और तारीफ के लायक है। बेशक हमने रसूलों को वाज़े निशानियां देकर भेजा और हमने उनके साथ किताब और मीज़ान उतारी ताकि वो लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। और हमने लोहा भी नाजिल किया जिसमें बड़ा जोर है और उसमें लोगों के लिए फायदे भी हैं। मीज़ान से मुराद नाप तोल के पैमाने हैं, ताकि बाहम लेन देन में लोगों के हकूक का तहफ्फुज़ हो और अदल कायम हो। इसी तरह नज़ाम अदल और तवाज़ुन जो कि एक नबी अल्लाह की रहनुमाई में कायम करता है और हक और बातिल के दरमियान वाज़े फर्क बता देता है। इमाम इब्ने कसीर ने यहाँ मीज़ान का ये मफ़हूम बयान फरमाया कि इंसान को अदलो इंसाफ और हक शनासी की अल्लाह ताला ने फितरी सलाहियत बख्शी, जिसकी बिना पर हर सलीमुल फितरत इंसान
किताब इलाही की दावत को बाआसानी कबूल कर लेता है। तो इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने ये हक शनासी की फितरी सलाहियत रखी है। और हमने लोहा भी नाजिल किया जिसमें लोगों के लिए बड़ा जोर है और लोगों के लिए फायदा भी है। यहाँ लोहा नाजिल करने का मकसद ये है कि रसूल सिर्फ ये निजाम अदलो इंसाफ पेश ही नहीं करता बल्कि इनको नाफिज भी करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि आपने फरमाया, मुझे क़यामत से पहले तलवार देकर भेजा गया ताकि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, और ताकि अल्लाह ताला जान ले कौन उसकी और उसके रसूलों की बिन देखे मदद करता है। यकीनन अल्लाह ताला जबरदस्त और गालिब है। और हमने हजरत नूह को और हजरत इब्राहिम को रसूल बनाकर भेजा और हमने उनकी औलादों में नबुव्वत और किताब रख दी। तो उनमें से बहुत से लोग तो सीधे रास्ते पर थे और उनमें से अक्सर नाफरमान थे। और इन दोनों के बाद हमने उनके पांव के निशानों पर अपने रसूलों को लगातार भेजा और हमने हज़रत ईसा इब्ने मरियम को भी भेजा और हमने उनको इंजील अता की। और जिन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी की उनके दिलों में हमने नरमी और रहमत डाल दी। और रहबानियत जिसकी उन्होंने इजाद की थी, हमने ये रहबानियत उन पर फर्ज नहीं की थी। हाँ, हमने उन पर ये फर्ज किया था कि वो अल्लाह की रजामंदी की तलाश करें। तो इन्होंने इसको निभा न सके जैसा कि इसको निभाने का हक था। रहबानियत ईसाइयों के दीन का हिस्सा है। बहुत से मर्द और औरतें दुनिया छोड़ देते हैं और सिर्फ अल्लाह दीन की खातिर निकाह नहीं करते, दुनिया के झंझटों में नहीं पड़ते, इसको वो अपनी तरफ से बड़ी नेकी समझते हैं। तो ये रहबानियत, तर्के दुनिया, ये अल्लाह ताला ने उनके दीन का हिस्सा नहीं रखा था। ये उन्होंने खुद इसकी इजाद कर ली, अपने दीन में एक नई बिदअत शुरू कर ली। और ये इस बिदअत को उन्होंने शुरू तो किया लेकिन इस बिदअत को निभा ना सके, क्योंकि तर्के दुनिया और ये रिश्तों को छोड़ना इंसान की फितरत के खिलाफ जंग है और इंसान फितरत के खिलाफ जंग में हमेशा नाकाम ही होता है। इस्लाम दीन फितरत है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें न सिर्फ निकाह करने की इजाजत दी बल्कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसफ दीन करार दिया। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि फितरत के खिलाफ जंग हो उसमें इंसान हमेशा नाकाम ही रहता है। तो वो उसको निभा न सके जैसा कि उसको निभाने का हक था। तो हमने उन लोगों को जो ईमान लाए उनका अजर उनको दिया और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ, वो तुम्हें दोहरा अजर अता करेगा अपनी रहमत से और तुम्हारे लिए एक ऐसा नूर बना देगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे और अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मगफरत फरमा देगा। और अल्लाह ताला तो बख्शिश करने वाला और रहम करने वाला है। जो अहले किताब अपने अंबिया पर भी ईमान लाएं और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और शरीयत पर भी ईमान लाएं, उनके लिए अल्लाह ने दोहरे अजर का वादा किया है, ताकि अहले किताब ये न समझ लें कि मुसलमान अल्लाह के फजल का कुछ हिस्सा भी हासिल नहीं कर सकते। हालांकि फजल तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसे चाहता है अता दे देता है और अल्लाह ताला तो बड़े फजल वाला है। अल्लाह ताला हमें हदायत की तौफीक अता قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان